یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کا کہ جب شام میں سلطان صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن تھے۔ ان کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی تھی لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا میں اب سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان صلاح الدین نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی، پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا، یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس لڑکی کو ان کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی انہوں نے لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی، وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور زنگی کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اس کا نام صلاح الدین یوسف تھا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ ہم آج آپ کو تاریخ کے اسی ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بائیوگرافی دکھا رہے۔ سلطان ایوبی نے جس طرح اعزاز شہر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے بلکہ ان کے چچا شیر کو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت میں وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا، پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی جو کہ اب اپنے چچا شیر کو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا، وہ خود مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے زنگی کے سازشی امرا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ ایوبی نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان ایوبی رحم دل سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں فراموش کر کے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا جو شام کے قلعہ نصراف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشن کا لفظ انگلش میں اسیسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔
ये असेसन इतने खतरनाक थे कि उनके खौफ से इस्लामी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान कांपते थे। और फिर एक दिन उन फिदाइयों को सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के कत्ल का हुक्म मिल गया। वजह ये थी कि नूर-उद-दीन जंगी के साबिक उमरा समझ चुके थे कि वो सुल्तान को मैदान जंग में नहीं हरा सकते, इसलिए वो साजिशों पर उतर आए। उन्होंने शेख सिनान को माल और दौलत का लालच देकर इस बात पर राजी किया कि वो अपने फिदाइयों के जरिए सुल्तान को कत्ल करा दे। शेख सिनान मान गया और फिदाई सुल्तान के कत्ल के लिए चल पड़े। फिर एक खूनी खेल शुरू हो गया। पहले कातिलों का एक ग्रुप आया जो नाकाम रहा और मारा गया। फिर एक कातिल सुल्तान के खेमे में दाखिल हुआ और उनके सर पर छुरी से हमला कर दिया। सुल्तान के सर पर पगड़ी थी, लेकिन पगड़ी के नीचे लोहे का हेलमेट भी था। 100 छुरी का वार नाकाम रहा। सुल्तान के मुहाफिजों ने फिदाई को कत्ल कर दिया, लेकिन वो फिदाई कत्ल हुआ तो एक और आ गया, वो मारा गया। फिर तीसरा आया, वो भी मारा गया। लेकिन सुल्तान समझ गए थे कि जब तक शेख सिनान का खात्मा नहीं होगा, उनकी जिंदगी पर ये तलवार लटकती रहेगी। चुनांचे वो एक बड़ी फौज लेकर निकले। उन्होंने सयाफ का मुहासरा कर लिया जहां शेख सिनान मौजूद था, लेकिन शेख सिनान को इस हमले की कोई परवाह नहीं थी। फिर एक रात एक अजीब वाकया हुआ जिसने सारे मामले का रुख ही बदल दिया। हुआ यूं कि सुल्तान अपने खेमे में सो रहे थे कि अचानक वो नींद से जाग उठे। उन्होंने देखा खेमे के चिराग बुझ चुके थे और खेमे में कोई और भी मौजूद था। सुल्तान ने मुहाफिजों को आवाज दी, वो दौड़ते हुए आए और जब चिराग दोबारा चलाए गए, सब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। सुल्तान के बिस्तर के करीब एक खंजर पड़ा था, उसके साथ एक कागज था जिस पर लिखा था, बादशाह सलामत अब हमारे रहम व करम पर हैं, जरा होश में आइए। सुल्तान बहुत हैरान हुए और उनके हुक्म पर मुहाफिजों ने खेमे के गिर्द जायजा लिया तो एक शख्स के कदमों के निशानात कुछ दूर तक दिखाई दिए, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जा सका। सुल्तान अपने दुश्मनों की दीदा दिलेरी और हैरत अंगेज जंगी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने शेख सिनान को दोस्त बना लिया और ऐसा पक्का दोस्त बनाया कि वही शख्स जो सुल्तान के खून का प्यासा था, वो सुल्तान के साथ मिलकर उन्हीं के दुश्मनों से लड़ता रहा। ताहम बाज मौरखीन ये भी कहते हैं कि उस रात सुल्तान के खेमे में कोई नहीं आया था। ये वाकया बिल्कुल झूठ है। वो ये भी कहते हैं कि सुल्तान के सख्त मुहासरे से खौफ ज़दा होकर शेख सिनान ने खुद रहम की दरख्वास्त की थी। किस्सा कुछ भी हो, बहरहाल सुल्तान ने अपने बदतरीन दुश्मन को भी अपना इत्तेहादी बनाकर आला ज़र्फ़ी और सियासी बसीरत का सबूत दिया। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के लिए साजिशी उमरा या शेख सिनान नहीं, बल्कि फ़लस्तीन की सलीबी सल्तनत सबसे बड़ा चैलेंज थी। सलीबियों ने 1099 में बैत अल मक़दस पर कब्जा कर लिया था। उनकी हुकूमत को एक सदी होने को आई थी, लेकिन वो इलाके की बाकी सल्तनतों के साथ अमन व अमान से रहने पर तैयार नहीं थे। सुल्तान ने इनसे सुलह की कई कोशिशें की, क्योंकि वो सबके साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहते थे। वो तो आपस में लड़ने वाली मुसलमान सल्तनतों को भी मुत्तहिद करना चाहते थे। सुल्तान को सलीबियों और मुसलमान हुक्मरानों दोनों से ही जंगें लड़ना पड़ी, लेकिन हकीकत में वो दोनों ही से अमन के मुआहदे करना चाहते थे। एक तरफ तो उन्होंने सलीबियों से सुलह के मुआहदे किए, तो दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरानों की एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद कराई। इस कॉन्फ्रेंस में तय पाया कि ये हुक्मरान अब एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। इन मुआहदों से सुल्तान को इत्मीनान हो गया था कि अब खित्ते में दोबारा जंग नहीं होगी, लेकिन सलाउद्दीन अयूबी के दुश्मन जल्द ही सुलह के मुआहदे तोड़ने लगे। खास तौर पर मूसल का हुक्मरान बार बार सलीबियों के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर देता था। सुल्तान ने मूसल के हुक्मरान को साजिशों की सख्त सजा दी और शहर का मुहासरा कर लिया। आखिर मूसल के हुक्मरान ने भी सुल्तान से एक मुआहदे के तहत अमन कायम कर लिया। ताहम सलीबी अपनी ताकत के ज़ूम में सुल्तान के साथ मुस्तकिल सुलह नहीं चाहते थे। चुनांचे 1177 में सुल्तान ने फौज जमा की और मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। शुरू में उन्हें बहुत कामयाबी मिली और उन्होंने कई किले फतह भी कर लिए, लेकिन उन किलों की हिफाजत के लिए काफ़ी फौज पीछे छोड़ना पड़ी। चुनांचे जब वो फ़लस्तीनी शहर रमल्ला के करीब पहुंचे तो उनकी फौज आधी भी नहीं रही थी। सलीबियों ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया
और 25 नवंबर 1177 को सलाउद्दीन अयूबी पर अचानक हमला करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये पहला मौका था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को मैदान जंग में नाकामी हुई थी, लेकिन असल सुल्तान वही होता है जो नाकामी से भी सबक सीखे। इस जंग के बारे में सुल्तान ने खुद दमिश्क में अपने भाई तौरान शाह को खत लिखा। सुल्तान ने लिखा, हम बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं, खुदा को हमसे कोई बेहतर काम लेना था जो बचा लिया। सुल्तान को अपनी शिकस्त का हिसाब बराबर करने का मौका जल्द ही मिल गया। हुआयूं के रमला में कामयाबी हासिल करके सलीबी ये समझने लगे कि सुल्तान अब अपनी सल्तनत का दिफा नहीं कर सकते, इसलिए बैत अल मक़दस के सलीबी हुक्मरान बैडवन फौर ने दमिश्क पर चढ़ाई कर दी। लेकिन वो गलती पर था, क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी, उन्हें सिर्फ वक्ती तौर पर कम तादाद की वजह से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन बैडवन फौर के हमले के जवाब में अब वो अपनी पूरी फौज जमा कर चुके थे। 10 जून 1179 को जब दोनों फौजें आमने सामने आई तो सलाउद्दीन अयूबी ने अपने फौजियों के सामने एक जबरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा, मुसलमान जिल्लत की जिंदगी पर मौत को तरजीह देता है, आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि मुसलमान पांव पर नहीं सीने पर जख्म खाता है। चुनांचे जब जंग हुई तो सुल्तान के वफादारों ने बैडवन फौर की फौज को जबरदस्त शिकस्त दी। शिकस्त खुर्दा बैडवन ने सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान चाहते तो दुश्मन की शिकस्त और कमजोरी का फायदा उठाकर फलस्तीन को उसी वक्त दुश्मन से छीन सकते थे। वो ये भी जानते थे कि दुश्मन सुलह के मुआहदे तोड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने रहम से काम लिया और एक बार फिर अपने बदतरीन दुश्मनों से सुलह कर ली। लेकिन यह सुलह माजी के मुआहिदों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये सुलह आखिरी सुलह थी। सुलह के बाद चंद साल तो सुकून से गुजर गए। बैडवन फौर 1185 तक जिंदा रहा और वो सुलह के मुआहदे पर भी अमल करता रहा, लेकिन कोढ़ के मर्ज की वजह से इसकी मौत हो गई, जिसके बाद बैत अल मक़दस की सलीबी सल्तनत भी उमरा की साजिशों का शिकार होने लगी। इस दौरान बैत अल मक़दस में गाय ऑफ लिव्ज़ैनन की हुकूमत आ गई कि जो मुसलमानों का खुला दुश्मन था। उसने मुसलमानों के खिलाफ फिर कार्रवाइयां शुरू कर दी। एक सलीबी सरदार रेनॉल्ड ने मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। ये सरदार इस हद तक चला गया कि इसने मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को तबाह करने का इरादा कर लिया। उसने सिर्फ इरादा ही नहीं किया, बल्कि इसने अपने बहरी जहाज़ों के जरिए अरब साहली इलाकों पर हमले भी करवाए, लेकिन सुल्तान के बहरी जंगी जहाज़ों ने रेनॉल्ड के बहरी बेड़े को तबाह करके ये नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया। लेकिन रेनॉल्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने मिस्र और शाम के दरमियान सफर करने वाले मुसलमानों के काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। सिर्फ तिजारती काफिलों को ही नहीं, बल्कि हाजियों के एक ऐसे काफिले पर भी हमला कर दिया जिसमें सुल्तान की बहन भी शामिल थी। काफिले को तो लूट लिया गया, लेकिन सुल्तान की बहन किसी न किसी तरह दुश्मन से बचकर सुल्तान के खेमे में पहुंची और काफिले पर बीतने वाले जुल्म का हाल बयान किया। काफिले पर जुल्म का हाल सुनकर और अपनी बहन की बेइज्जती पर गैरतमंद भाई का खून खौल उठा। सुल्तान ने कसम खाई कि वो रेनॉल्ड को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। बहरहाल अब सुल्तान ने अपने तमाम इत्तेहादियों और गवर्नरों को खत लिखे और उन्हें कहा कि वो फौज लेकर सुल्तान की मदद को पहुंचे, क्योंकि अब सलीबियों के खिलाफ जंग का वक्त आ चुका। चुनांचे मिस्र और शाम समेत कई मुसलमान ममालिक से बड़ी तादाद में फौजें दमिश्क पहुंचने लगी, जिसे सुल्तान ने उस वक्त अपना दारुल खिलाफा बना रखा था। सुल्तान ने फौज जमा की और सलीबियों के ज़ेर कंट्रोल शहर किब्रिया अलिफ टाइबरस का मुहासरा कर लिया। जवाब में रेनॉल्ड ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। वो गाय ऑफ लिव्ज़ैनन का गहरा दोस्त भी था, इसलिए गाय भी अपनी फौज के साथ मैदान में आ गया। उसने सुल्तान अयूबी से सुलह का मुआहिदा भी तोड़ दिया। कहा जाता है कि बैत अल मक़दस पर सलीबी कब्जे के बाद से सलीबियों ने इतनी बड़ी फौज जमा नहीं की थी जो सुल्तान अयूबी के मुकाबले पर आई। रेनॉल्ड और गाय की मुत्तहिदा फौज ने सुल्तान की तरफ पेश कदमी शुरू की। सुल्तान ने सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए हतीम का इलाका चुन लिया। इस इलाके में पानी के चंद एक ही चश्मे थे और ज्यादातर इलाका बंजर और वीरान था।
सुल्तान की फौज पानी के चश्मों के पास ठहर गई, जबकि सलीबी फौज को सुल्तान तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर के एक ऐसे इलाके से भी गुजरना था जहां पानी ही नहीं था। कुछ सलीबी कमांडर ये कह रहे थे कि आगे बढ़ने में खतरा है क्योंकि उन्हें फौज के लिए पानी नहीं मिलेगा, लेकिन गाय ने उनकी बात ना मानी क्योंकि इसे एतमाद था कि जंग में इसे कोई नहीं हरा सकता। इसके इस यकीन की वजह थी सल्बे आजम आट्रू क्रॉस। जी हाँ, सलीबियों के पास एक बहुत बड़ी सलीब थी जिसमें लकड़ी का एक टुकड़ा नुमाया था। सलीबियों का अकीदा था कि यह टुकड़ा उसी असल सलीब का है जिस पर हजरत ईसा को रोमियों ने मसलूब किया था। सलीबी फौज सलीब ए आजम को 20 बार मैदान में जंग में लेकर गई थी और हर बार फतह हासिल की थी। गाय और उसके साथी समझते थे कि सलीब ए आजम की मौजूदगी में ये जंग भी वही जीतेंगे, इसलिए उन्होंने रास्ते की सारी मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई गर्मी और प्यास की शिद्दत से बेहाल होती गई। चुनांचे जब ये फौज सुल्तानी लश्कर के सामने पहुंची तो थकन और प्यास से निढाल हो चुकी थी। जब रात हुई तो सुल्तानी फौजियों ने सलीबियों के कैंप में घुसकर घोड़ों की घास के गट्ठों को आग लगा दी। सलीबियों के पास आग बुझाने के लिए पानी ही नहीं था, जबकि आग की तपेश से इनकी प्यास और भड़क उठी। आग और धुएं की वजह से वो लोग रात भर सो भी नहीं सके। अगले दिन 4 जुलाई 1187 को सुल्तान ने सलीबी फौज पर हमला किया। मुसलमानों ने जहरीले तीरों की बारिश करके सैकड़ों सलीबी हलाक कर दिए। फिर फौजी दस्ते आगे बढ़े और दुश्मनों पर टूट पड़े। सलीबी फौज के ज्यादातर सिपाही बगैर लड़ाई के ही मैदान में जंग से फरार हो गए। जो बाकी रहे इनमें मुकाबले की ताकत ही नहीं थी, इसलिए वो आसानी से पकड़े गए। सलीब ए आजम भी मुसलमानों के कब्जे में चली गई। रेनाल्ड और गाय दोनों जंगी कैदी बने। सलीबी लश्कर के सिपाही प्यास से हाँप रहे थे। सुल्तान ने उन्हें पानी पिलाने का हुक्म दिया। गाय को तो ठंडा अरक का गुलाब पिलाया, लेकिन रेनाल्ड को बदअहदी की भरपूर सजा दी। सुल्तान ने अपने हाथों से इसका सर कलम कर दिया। ये देखकर गाय डर गया कि अब उसकी बारी है, लेकिन सुल्तान ने इसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते। अब सुल्तान बैत अल मक़दस की तरफ बढ़े। शहर का हुक्मरान तो पहले ही उनकी कैद में था। उन्हें उम्मीद थी कि शहर आसानी से फतह हो जाएगा, लेकिन सलीबियों ने सुल्तानी फौज का 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे तक डट कर मुकाबला किया और दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान हुआ। सुल्तानी लश्कर ने आग के गोलों की बारिश करके दीवारों में शिगाफ पैदा कर दिए। सलीबी लश्कर को खौफ हुआ कि अगर मुसलमान शहर पर काबिज हो गए तो कहीं उनके बीवी बच्चों को गुलाम ही ना बना ले। चुनांचे उन्होंने लड़ाई का इरादा छोड़कर सुल्तान के रहम को पुकारा और सुल्तान ने भी इस पुकार का जवाब रहम दिल्ली से ही दिया। जहां 88 बरस पहले जब सलीबियों ने कब्जा किया था तो खून की नदियां बहा दी थी, लेकिन जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर अपने बदतरीन दुश्मनों को मुआफ कर दिया था, इसी तरह फातेह बैत अल मक़दस ने भी अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया। उन्होंने शर्त आयद की कि हर ईसाई मर्द 10 दीनार और औरत 5 दीनार अदा करे और आज़ादी हासिल कर ले। जो ऐसा न कर सके उसे गुलाम बना लिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सलीबियों के मजहबी रहनुमाओं ने फौरी तौर पर यह रकम अदा की और जिंदा सलामत निकल गए। मजहबी रहनुमाओं का लीडर तो हीरे जवाहरात से लदे संदूक भी सुल्तानी फौज के सामने लेकर चला गया, लेकिन इतनी दौलत दे जाने वाले अपने पीछे गरीबों को छोड़ गए थे जिनका फिद्या देने वाला कोई नहीं था। ये सलीबी खौफजदा थे कि सुल्तान के फौजी उन्हें गुलाम बना लेंगे, लेकिन सुल्तान का रहम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था। उन्होंने गरीब सलीबियों को मुफ्त आज़ादी बख्श दी। कुछ सलीबी तो सुल्तान के सलूक से मुतासिर होकर इसी शहर में ठहर गए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की रहम दिल्ली और सलूक का मगरिब भी एतराफ करता है। यूं 2 अक्टूबर 1187 को बैत अल मक़दस पर सलाउद्दीन अयूबी का मुकम्मल कंट्रोल हो गया, यानी बैत अल मक़दस 88 बरस बाद दोबारा मुसलमानों के कंट्रोल में चला गया।
सुल्तान ने गाय अफलिव्स ऐनन को भी आज़ाद कर दिया, लेकिन इस शख्स ने आज़ादी का नाजायज फायदा उठाया और बैत अल मक़दस से निकलने वाले सलीबियों को साथ मिलाकर साहिली शहर का मुहसरा कर लिया। उधर बैत अल मक़दस सलीबियों के हाथ से निकलने पर सारे यूरोप में कोहराम बर्पा हो गया और जंग की तैयारियां होने लगी। बरतानिया में तो सलाउद्दीन टैक्स लगाया गया ताकि पैसे जमा करके सुल्तान के मुकाबले के लिए फौज जमा की जा सके। ये ऐलान भी किया गया कि जो लोग सुल्तान के खिलाफ लड़ने जाएंगे उनके गुनाह मुआफ हो जाएंगे। वापसी पर उन्हें बुखार हो गया, शायद उन्हें सर्दी लग गई थी। वो इस बुरी तरह बीमार हुए कि कोई होश न रहा। हालत ये थी कि हाफिज़ कुरान उनके सरहाने बैठे मुसलसल तिलावत करते रहते, जबकि दमिश्क के शहरी रोजाना उनकी खैरियत दरियाफ्त करने घर के दरवाजे के बाहर जमा हो जाते। 4 मार्च 1193 की सुबह सुल्तान ने आंखें खोली, तिलावत सुनकर मुस्कराए, फिर उनके लब हिले जैसे वो कुछ पढ़ रहे हैं, फिर उनकी रूह परवाज कर गई।